Good morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is fabric. It is a noun, ये संज्ञा है. The meaning of this word is a type of cloth or a material that is used for making clothes, curtains etc. So fabric एक तरह का कपड़ा होता है या कुछ मटेरियल होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, कर्टन्स बनाए जाते हैं. So now about using this word to frame sentences, it can be like that. This fabric is shiny, this fabric is expensive. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class, children, as you know that we have already completed the discussion of chapter number 5, the golden bucket. So in previous class we had done some bookwork exercises. In today's class also we will be doing the remaining bookwork exercises. So let us start. So children, as you know that we are doing the bookwork of our lesson number 5, the golden bucket these days. So in our previous class we had discussed and done some bookwork exercises. 2 exercises was given to you as homework, exercise F and exercise G. वो आपको homework में करनी थी. I am sure आपने कर ली होंगी. So in today's class we will be doing the remaining bookwork exercises. We will be doing exercise H, I, exercise K, and life skills. And exercise K, L, M are being omitted. से ये omit है, ये हम नहीं करेंगे. हम सिर्फ exercise H, I, J और life skills करेंगे. So let us start. Open your English reader book, page number 52. So this exercise was given to you as homework. ये आपको homework में दी गई थी. Now we will start with this exercise, that is exercise H. H से हम start करेंगे. So children, this is exercise H. Write all the details like classwork and today's date. So this exercise says find out the rhyming pair of words on this wall. Color the bricks of the rhyming words with the same color. So आपको यहाँ rhyming words के पेयर ढूंढने हैं. So do you remember what are rhyming words? हमने किए थे पहले. So I want to repeat. Rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. Same या similar ending sound होती है उनकी. उनका मीनिंग अलग हो सकता है, बस उसमें क्या सिमिलरिटी होती है कि उनकी साउंड सेम होती है. सो सिमिलर साउंड्स होती हैं उनकी. सो ऐसे वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कह सकते हैं हम. सो हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है लाइक नियर, डियर. सो ये डिफरेंट है इनका मीनिंग, लेकिन इनकी जो साउंड है, जो एंडिंग साउंड है वो सेम है, नियर, डियर. सो इसी तरह से हमें और वर्ड्स मैच करने हैं. अगर मैं कलर करती तो आपको वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने कलर्स के नेम लिखे हैं. आप चाहें तो कलर कर सकते हैं अपनी बुक में. सो दिस इज़ लेदर. लेदर क्या है? चमड़ा. सो आर से ही मैंने एक और जैसे लिखा है बॉक्स, आर लिखा है. इट मीन्स ये दोनों राइमिंग पेयर्स हैं. लेदर, वेदर. ब्राइट, ब्राइट को मैंने किससे मैच किया है? ब्राइट इज टू बी नाइट. ब्राइट नाइट. सो एंडिंग साउंड है वो सिमिलर होगी या सेम होगी. वाइफ, लाइफ. डोर, डोर, फ्लोर. हाइड, वाइड. नीडी, ग्रीडी. फाइंड, काइंड. शॉप, फ्लॉप. सो वेदर तो लेदर के साथ हो गया, ये सब हो गए हैं. सो इस तरह से हमें राइमिंग वर्ड्स जो कि उनके पेयर बनाने हैं. आप चाहेंगे तो कलर कर सकते हैं. यू कैन फिल कलर्स. आप जैसे लेदर और वेदर में रेड कलर फिल कर दिया सेम. ब्राइट और नाइट में येलो कलर कर दिया. ये आप पर है कि जो उनका पेयर है राइमिंग वर्ड्स का, दोनों में सेम कलर होना चाहिए. सो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि जिनकी एंडिंग साउंड या तो सिमिलर होती है या सेम होती है.
उनका वो मीनिंगफुल होते हैं, कुछ भी हम राइमिंग वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। मैं बोलूँ कि टॉक के लिए आप राइमिंग वर्ड लिखो, तो आप ऐसा ही कुछ भी जो वर्ड जो आप फ्रेम करेंगे मुझे बताएंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सो उनका जो एंडिंग साउंड सेम होता है, राइमिंग वर्ड्स ये होते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो चिल्ड्रन, बिफोर डूइंग एक्सरसाइज आई, we will be discussing the concept behind exercise I, that is pronouns. pronouns के बारे में है। हमने pronoun चैप्टर किया है इंग्लिश ग्रामर में, तो आई एम श्योर कि आप उसे जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं। सो जॉन लिव्ड इन अ जंगल, जॉन वाज काइंड। सो यहाँ पर किसका रिपीटेशन हुआ है? जॉन का। सो जॉन क्या है? एज इट इज़ अ मेल नाउन, तो हम क्या जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे? जॉन लिव्ड इन अ विलेज, ही वाज काइंड। नेक्स्ट एट नंबर 2, जॉन एंड द ओल्ड मैन वर इन द जंगल। जॉन और ओल्ड मैन दोनों जंगल में थे। जॉन एंड द ओल्ड मैन, अब जॉन एंड ओल्ड मैन ये रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या है? हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो हम क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? लेट अस सी। वर लुकिंग द बेरीज, वो बेरीज को ढूंढ रहे थे। जॉन एंड द ओल्ड मैन वर इन द जंगल, फर्स्ट लाइन हम सेम लिखेंगे, सेकेंड लाइन में हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि अंडरलाइन है, दे। जॉन एंड ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे। They were looking for the berries. So children, related to pronouns, we have this exercise I on page number 53 in our English reader book. Fill in the blanks with words from the box. हमें इन words की मदद से जो box में है blanks fill करने हैं. So we will be reading the words that are given in this box. He, we, you, she, they. So these all words are pronoun words. ये सब pronoun words हैं। हमें इन्हें correctly fill करना है, जो space दी गई है, जो blank दिया गया है उसमें। But we have to read the sentence thoroughly for that. Properly fill करने के लिए, correctly fill करने के लिए हमें sentence को read करना पड़ेगा। So at number 1, have dash seen my new story book. ये question पूछा गया है, क्या मेरी न्यू स्टोरी बुक देखी है? तो ये किसे पूछा गया है? हाउ कैन वी जज, हम कैसे जान सकते हैं? हाउ कैन वी नो दैट? आई टोल्ड यू व्हाइल वी वर डूइंग प्रोनाउन चैप्टर कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज या हैव। तो आई, वी और दे और यू के साथ हम हैव यूज करते हैं, और हम ही, शी, इट के साथ हैज यूज करते हैं। जब कुछ क्वेश्चन पूछना हो सकता है, या फिर कुछ बिलोंगिंग या कुछ पोजीशन की जब बात होती है, जैसे आई हैव अ कार, वी हैव दिस बुक, दे हैव अ लार्ज हाउस, इस तरह से बात करने के लिए, या जैसे हम हैज को यूज करें तो शी हैज अ न्यू कार, ही हैज अ न्यू कार, इट हैज अ रेड बीक। सो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। हैव हम क्या यूज कर सकते हैं? हैव वी सीन माई न्यू स्टोरी बुक? नो। हैव दे सीन माई न्यू स्टोरी बुक? ये भी हो सकता है, बट अप्रोप्रिएट रहेगा हैव यू सीन माई न्यू स्टोरी बुक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने मेरी न्यू स्टोरी बुक देखी है। सो नेक्स्ट एट नंबर 2, रवि इज माई ब्रदर, रवि मेरा भाई है। डैश इज 10 years old, वह 10 साल का है। इट मीन्स हमें रवि को कंसिडर करना है प्रोनाउन चूज करने के लिए। रवि क्या है? मेल नाउन, तो मेल नाउन के लिए हम क्या प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे? ही। रवि इज माई ब्रदर, ही इज 10 years old. नेक्स्ट एट नंबर 3, लुक एट दैट लेडी इन द येलो साड़ी, उस लेडी को देखो जो येलो साड़ी में है। डैश इज माई आंट, वो मेरी आंट है। सो उस लेडी की बात की गई है जो येलो साड़ी में है, उन्हें देखते हुए हमें प्रोनाउन चूज करना है। तो जो लेडी है वो साड़ी में, वो क्या हो सकते हैं? फीमेल नाउन। सो शी इज माई आंट, वह मेरी आंट है। एट नंबर 4, आलिया इज माई सिस्टर, आलिया मेरी बहन है। सो हमें आलिया को कंसिडर करना है। डैश आर ट्विंस, ट्विंस हैं। अब हम आलिया की बात कर रहे हैं, साथ में कोई पर्सन बोल रहा है कि आलिया मेरी बहन है, तो इट मीन्स मेरी जो पर्सन बोल रहा है उसकी और आलिया के बारे में कहा गया है कि वो ट्विंस है। तो वो जब पर्सन खुद अपने बारे में बताता है तो हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? वी। जब पर्सन और किसी और के साथ वो बात
अपनी कह रहा है तो हम वी प्रोनाउन यूज करते हैं क्योंकि वो उसमें इंक्लूड है। सो आलिया इज माई सिस्टर, वी आर ट्विंस। नेक्स्ट एट नंबर 5, आशा एंड रोमा आर इन द पार्क। आशा और रोमा पार्क में है। सो उनकी बात की जा रही है। दैश आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड, वो स्लाइड पर खेल रहे हैं। सो वो आशा और रोमा जो कि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, उनके बारे में बताने के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? दे आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड, वो स्लाइड पर खेल रहे हैं। So next is exercise J. Match the naming words with correct pronoun. So in this cloud we have been given naming words and in this cloud we have been given pronoun words. So हमें करेक्टली मैच करना है नेमिंग वर्ड्स को प्रोनाउन से, उनके करेक्ट प्रोनाउन से। So this exercise is on page number 53 in our English reader book. So cloud A has naming words like mother, John, friends. So ये नेमिंग वर्ड्स हैं। What are naming words? Do you remember children? नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स का जो नेम बताएं या किसी आइडिया का नेम बताएं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नेमिंग वर्ड्स की प्लेस पर आते हैं। हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? उन्हें नाउन्स को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए और सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली समझने के लिए, सेंटेंस को इजी से अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। सो मदर, जॉन, फ्रेंड्स जो कि क्लाउड ए में है वो है नेमिंग वर्ड्स एंड दे, ही और शी क्लाउड बी में है, ये क्या है? प्रोनाउंस। सो वी हैव 3 नेमिंग वर्ड्स एंड 3 प्रोनाउंस वर्ड्स। हमें इन्हें मैच करना है और हमें करेक्टली मैच करना है। सो मदर क्या है? जो नेमिंग वर्ड है वो क्या है? फीमेल नाउन। सो मदर को हम कहाँ मैच कर सकते हैं? शी। मदर को हम मैच करेंगे शी से एंड जॉन को ही से। जॉन क्या है? मेल नाउन, ही से मैच करेंगे। और फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स हैं, प्लूरल है। सो मोर देन वन है तो हम इन्हें किस प्रोनाउन से मैच करेंगे? दे। सो फ्रेंड इज टू बी मैच्ड विद दे, मदर इज टू बी मैच्ड विद शी एंड जॉन इज टू बी मैच्ड विद ही। Children, next we are going to do this exercise life skills. This is on page number 55 in our English reader book. So mummy and papa do many things for you. Tick the things that you can do for them. Share with the class any other thing that you do for them. So it is about helping and sharing. मम्मी और पापा आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उन चीज़ों को टिक करो जो आप उनके लिए कर सकते हो या करते हो। फिर ये क्लास से भी शेयर करो जो आप उनके लिए कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत से काम है चिल्ड्रन जो आप जानते हैं करना बट करते नहीं हैं या आप एक्सक्यूजेस देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग एंड शेयरिंग का मीनिंग हमने बहुत अच्छे से सीखा है। हमने पहले वाले लेसन में भी हेल्पिंग और शेयरिंग जो कि कैरेट वाला लेसन था उसमें भी हमने देखा था, डिस्कस किया था। और इस लेसन में भी जॉन के थ्रू हमने डिस्कस किया कि जॉन बहुत काइंड था, हेल्प करनी चाहिए। सो हेयर वी हैव बीन गिवन सम पॉइंट्स। हमें देखना है कि इनमें से आप क्या करते हैं। सो नंबर 1, पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। वेजिटेबल्स जो लाई जाती हैं मार्केट से उन्हें आप फ्रिज में रख सकते हैं। और या ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें निकाल कर दे दें फ्रिज में से। सो फ्रिज तो आप टच करते ही हैं ना। तो वेजिटेबल को फ्रिज में रखना ये आप करते हैं। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं तो यू मे टिक दिस बॉक्स। अनदर इज नेक्स्ट एट नंबर 2, अरेंज योर बुक्स नीटली। अपनी बुक्स नीटली अरेंज करना, बिखरी हुई नहीं रहनी चाहिए, पाइल ऑफ बुक्स नहीं होना चाहिए। सो वो नीटली अरेंज होनी चाहिए। आपने पढ़ लिया है तो उन्हें अरेंज करके रख दें। रादर यू वेट फॉर योर मदर और सम अदर मेंबर, उनकी मदद लेने की बजाय ये आप अपनी बुक्स अपने आप अरेंज कर सकते हैं। यू नो अबाउट योर थिंग्स वेरी वेल। आप अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अपनी बुक्स अरेंज कर सकते हैं, अपने टॉयज़, अपनी और चीज़ें, गेम्स अरेंज करके रख सकते हैं। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल टिक दिस ऑप्शन। एट नंबर 3, पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक। खाना खा लिया है और आप अपनी प्लेट सिंक में रख सकते हैं। आप दूसरों की भी प्लेट उठा के रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मम्मी खा रहे हैं या कोई और खा रहे हैं, दादू खा रहे हैं, दादी खा रहे हैं,
उनकी भी प्लेट ले जाकर आप सिंक में रख सकते हैं। सो आपको पता है यहाँ वहाँ प्लेट्स को सिंक में रखेंगे, फिर वो वहाँ वॉश होगी। सो आप अपनी डिशेस हैं खाने के बाद सिंक में रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन ऑप्शन को, इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं। एट नंबर 4, फोल्ड योर क्लोथ्स। अपने क्लोथ्स को फोल्ड करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टिक कर दीजिए इस ऑप्शन को। आपकी कबर्ड में क्लोथ्स हैं, कुछ छोटे क्लोथ्स हैं जो आप फोल्ड कर सकते हैं इजीली। सो अगर आप ऐसा करते हैं या आप सूखने डालते हैं अपना टॉवल जो वायर पर या स्टैंड पर, जहाँ भी आपको बताया गया है, सो आपको ऐसा करना चाहिए। वहाँ से आप ला भी सकते हैं, उसे फोल्ड करके रख सकते हैं। एट नंबर 5, कीप योर शूज़ इन प्लेस। अपने शूज़ को उनकी प्लेस पर रखना। शूज़ को रखने के लिए प्लेस होगी, जहाँ से आप निकालते हैं आप उन्हें वहीं रखिए। दूसरे शूज़ भी आप अरेंज कर सकते हैं। सो चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखिए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए। ऑर्गेनाइज मतलब हर चीज़ को उसी की प्लेस पर रखेंगे और इसे सही तरीके से रखेंगे तो मेस नहीं होगा, क्रिएट होगा और एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा और ये वो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाएगी। सो इससे आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप नहीं करते तो वो करते हैं काम आपका। सो वो अपना भी काम करते हैं, वो आपका भी काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते तो वो करेंगे ही। सो लेकिन जो चीज़ें आप कर सकते हैं और आप एक्सक्यूज़ बनाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। सो यही ये कहने का जो था एम था कि आपको जो काम आता है वो आप करिए, उसे हैबिचुअली नहीं मतलब उसे हैबिचुअली करिए, रोज़ करिए जो कि काम आपको आता है। और जो काम नहीं आता वो सीख सकते हैं, धीरे धीरे आपको सिखाया जा सकता है। आप अपने एज के अकॉर्डिंग वो काम सीख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर अवर इंग्लिश क्लास टुडे। वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास. Children, bye bye, take care.